Good evening, ladies and gentlemen. It is my great honor to welcome you all to another evening of Spring Fever, Delhi's oldest literary and cultural festival hosted by Penguin Random House India. This evening, we have two remarkable men as panelists and a wonderful woman moderating the session. Srijan Pal Singh studied at IIMA, went on to work with the Boston Consulting Group, and later worked with Dr. APJ Abdul Kalam. It is with Dr. Kalam that Srijan co-authored two of his best-selling books, Target 3 Billion and Reignite. Srijan is currently working on his new book, What Can I Give?, to be published in July, which is also the first death anniversary of Dr. Kalam. Our other panelist is Anand Kumar, a much beloved and recognized face. Anand Kumar is an Indian mathematician and the founder of Super 30, a unique program in which he teaches 30 underprivileged students for the IIT entrance exam. He takes care of all of their boarding and expenses, and more than once, all 30 students have cracked the IIT. Anand understands how limiting poverty can be, having witnessed it firsthand. This extraordinary initiative is today one of the most lauded and educational programs in the world. People magazine heralded him as people's hero. Time magazine included Super 30 as one of the best of Asia. And Newsweek lists us as one of the 4 most innovative schools in the world. We publish this extraordinary book in May this year. Moderating the session is the lovely Pooja Upadhyay, whose book Teen Roz Ishq came out last year to great media attention and excellent reader reviews. You must be all thinking that what am I still doing here, not letting the fabulous session begin. So without much further ado, I'll hand it over to Pooja to take it forward. But all of you all who are tweeting here, the hashtag is Spring Fever 2016. Thank you. Thank you, Radhika. The topic of our session today is what can I give? We live in a time and era where we talk about this is what I want, this is what I need. So let's change the topic around and start talking about what can we do, what can I give? I would like to begin with a small anecdote which is shared by Srijan, by Abdul Kalam, his mentor. He asked him, what would you like to be remembered for? And Srijan very nicely turned the question around to Dr. Kalam, to Abdul Kalam, and said, first you tell me, what would you like to be remembered for? President, scientist, writer, missile man, India 2020, target 3 billion, what? Srijan thought he was making it simple by giving him choices. But he was surprised when Kalam said, I would like to be remembered as a teacher. कलाम के गुजरने के बाद सृजन का ये लेख मैंने पढ़ा था. It went viral on social media, and this is something that remained with me for a very, very long time. Despite handling a lot of roles, this is what Kalam would like to be remembered for. When we talk about mentorship, we have Anand here, and I would like him to talk about how Super 30, being a teacher versus being a mentor, what it means. So Anand, I would like to take the dais and talk about it. यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से जो एक क्लास वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारे देश का प्रबुद्ध वर्ग है, उससे बातचीत का मौका दिया पेंगुइन ने। इसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने समय निकालकर
यहाँ आने का कष्ट किया। मेरे दोस्तों, मैं जब बहुत छोटा था, बच्चा था, तो हमारे पिताजी को हमने देखा था, अपने पिताजी को कैसे गरीबी से सरवाइव करके हम लोग को पढ़ाते थे और कई घटनाओं को सुनाते थे कि देखो बेटा, ऐसा है कि मैं पढ़ना चाहता था। हमारे पिताजी जानते थे कि क्या है पावर ऑफ एजुकेशन। हमारे पास एक 2 बीघे ज़मीन थी, उस ज़मीन भी बिक गई थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो छोटी छोटे टुकड़ों में ज़मीन भी बिक गई थी। लेकिन पिताजी मुझे पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते हाई स्कूल पास करके मैं पटना कैसे आया, पिताजी कहानी बताते थे। उसके बाद हमारे फादर बताते थे कि जाड़े की रात होती थी और जाड़े की रात कैसे ठंड में गुजारते थे, वो चर्चा करते थे। हमारे पिताजी इतने अच्छे मार्क्स से पास किए 10th क्लास, उनका एडमिशन बिहार के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज साइंस कॉलेज में हुआ था, लेकिन हॉस्टल में रहने के लिए, खाने के लिए उनके पैसे नहीं थे। हमारे दादाजी उनको एक रमेश शर्मा आदमी के यहाँ छोड़ दिया था कि आपके बच्चों को पढ़ाएगा, आपकी सेवा करेगा, आप हमारे बेटे को खाना दे दीजिए, रहने का आसरा दे दीजिए। पिताजी बताते थे कि ठंड की रात में जब जाड़ा मुझे लगता था, ठंड लगती थी, तो कैसे उनके बच्चों के साथ मैं रजाई में घुस के चोरी से सोता था। कैसे जब मैं कॉलेज में जाता था और मेरे पास स्वेटर नहीं हुआ करते थे, तो हमारी शिक्षिका बोलती थी कि अरे राजेंद्र, हीरो बनते हो, कपड़े नहीं पहनते हो। लेकिन पिताजी बताए कि मैं इस दर्द को नहीं बता सकता था कि हमारे पास स्वेटर नहीं है। लेकिन पूरी पढ़ाई किए बगैर पिताजी का नौकरी करना मजबूरी बन गई थी। एक छोटे से क्लर्क की नौकरी, चिट्ठी छांटने वाले डाक विभाग में नौकरी की उन्होंने। पढ़ाई छूटने का दर्द, गरीबी से उन्हें हमेशा सताता था। बचपन से इन सब बातों को सुनाकर पिताजी इंस्पायर्ड करते थे मुझे कि बेटा तुम्हें पढ़ना है और बहुत बड़ा करना है। बहुत कम उम्र में ही मुझे पढ़ाने का शौक हुआ। मैं जब 4th कक्षा में पढ़ता था तो 3री कक्षा के बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता था और बच्चे मुझे सर बोलते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। उतना खुशी शायद किसी अवार्ड मिलने से भी नहीं होगी, उतनी खुशी होती थी। धीरे धीरे एक शिक्षक हमारे अंदर जागा और मैंने सोचा कि अब जीवन में जो कुछ भी हो, चाहे कैम्ब्रिज में बनना हो, MIT में बनना हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में बनना हो या पटना के एक छोटे से मोहल्ले में बनना हो, बनना मुझे शिक्षक है, मैंने तय किया। हमारे कुछ पेपर बाहर पब्लिश उसी वक्त हुए जब मैं ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से कर रहा था। उसी के आधार पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दाखिले का ऑफर आया। लेकिन एक बार फिर हमारे पिताजी को बहुत दर्द हुआ इस बात का कि कैसे हम अपने बच्चे को भेजें। हमारे पास तो फ्लाइट का फेयर भी नहीं है और शायद यही चिंता हमारे पिताजी का सडन हार्ट अटैक का कारण बना और बहुत कम उम्र में ही वो दुनिया छोड़ के चले गए। मुझे हमेशा लगता रहा कि गरीबी के चलते, हमारे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, गरीबी के चलते कई लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं महसूस करता हूं कि आज भी हमारे पिताजी कहीं भी, पता नहीं इसके बाद स्वर्ग का नरक का पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं हमेशा अनुभव करता हूं जहां भी हमारे पिताजी हैं, इस बात को कह रहे हैं कि देखो बेटा, गरीबी के दर्द से पढ़ाई छूटने का जो कष्ट होता है, मैं उसे समझता हूं। बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है। हमारे देश में बहुत गरीब हैं, ऐसा धीरे धीरे सुपर 30 को लेके चलना है कि अंतिम सांस तक तुम्हें देखना है कि हमारे देश का कोई ऐसा बच्चा न रहे जो पैसे के अभाव में जिसकी पढ़ाई छूट जाए। इस मिशन पर काम करना है। आज भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता है मेरे दोस्तों। इसी भावना के तहत मैंने सुपर 30 की शुरुआत की। 30 बच्चों को हर साल मैं सेलेक्ट करता हूं, अपने घर में रखता हूं। हमारी माताजी खाना बनाती है, हमारे भाई साहब हैं, वाइफ हैं, सब देख रेख करते हैं और आज वो बच्चे जाते हैं। हमने आज तक 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लिया। हम लोग खुद ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारी वाइफ, हमारा परिवार, हमारा भाई शाम को ट्यूशन पढ़ाता है और उससे जो आमदनी होती है उसी से हम लोग प्रोग्राम को सर्वाइव करते हैं। 300 बच्चों का भोजन, रहना, खाने की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे इस प्रोग्राम में माफियाओं का भी हमला हुआ, कई बार गोलियां भी चली, कई कोचिंग माफिया, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स
पॉलिटिशियन भी हमारे पीछे लगे कि इसका नाम हो रहा है, प्रचार हो रहा है, इसको बंद करवाओ, नहीं कहीं कहीं हो न हो आने वाले टाइम में इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा तो हमारा सर दर्द भी कर सकता है। इतने लोग आज डरने लगे। तो एक शिक्षक की ताकत हो सकती है, एक शिक्षक कुछ भी कर सकता है, ये मैं धीरे धीरे अनुभव कर रहा हूं। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद. That is a very inspiring story. Srijan is one of those rare people who choose not to follow the beaten track. He comes here with a question, what can I give? Instead of the regular cacophony, what do I want? Our visionary president, Abdul Kalam, said, if you are blessed with intelligence and empowered with education, it is your responsibility to change the world. Srijan, please share with us the stories of what it was like to work with him and how his visions inspire you still, even after his demise. Thank you. थैंक यू पूजा जी. सबसे पहले मेरा ग्रीटिंग्स. पूजा जी हमारी मॉडरेटर हैं. आनंद जी, शिक्षक की शक्ति दिखाने वाले आनंद जी, जिनके बारे में हम सब ने सुना है. कई हमारे यहाँ मित्र हैं पेंगुइन से. हिमाली जी, सोहिनी, पिया कहाँ है पता नहीं. तो उदयन जी इज देयर. राजू बैठे हैं यहाँ पे, खड़े हो. ये लड़का जो है डॉक्टर कलाम के साथ, he was the man who used to manage his house. So we can give him a round of applause. Okay. Jairaj is there. Jairaj worked on a lot of books, including Reignited. He helped me research. Jatin is here somewhere, young guy who worked with Dr. Kalam on many missions for the youth. So, and all of you here, आप सब लोग हो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हो डॉक्टर कलाम के साथ. चाहे आप उनसे कभी मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन आपने उनको कहीं ना कहीं सुना अवश्य होगा. चाहे टीवी पे सुना हो, कहीं ना कहीं पढ़ा अवश्य होगा, और कहीं ना कहीं आपने उनके जीवन से अपने जीवन में एक ना एक सीख जरूर ली होगी. और आप चाहे जिस उम्र में हो, इफ यू आर यंग एट माइंड, डॉक्टर कलाम यूज्ड टू से, इफ यू आर यंग एट माइंड यू आर अ यूथ. फर्क नहीं पड़ता आप उम्र में कितने हो, सोच कितनी जवान है, उससे ये डिसाइड होता है कि कौन कितना युवा है. डॉक्टर कलाम के साथ पहली बार मैं 2008 में मिला. IIM अहमदाबाद में आई वॉज ए स्टूडेंट. आई वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट. सो वहाँ पे थोड़ा डेमोक्रेसी दूसरे रूप में दिखती है. आजकल आप लोग छात्र डेमोक्रेसी दूसरे रूप में दिख रहे हैं, लेकिन IIM अहमदाबाद में छात्र डेमोक्रेसी का मतलब यह था कि हम डिसाइड करते थे कि कौन क्या पढ़ाएगा और किस वक्त पढ़ाएगा. ठीक है. सो वहाँ पे डॉक्टर कलाम, हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, उनके साथ डॉक्टर कलाम एक कोर्स पढ़ाने आए. आई वॉज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट. सो वो कोर्स को कोऑर्डिनेट कराया और पहली दफ़ा मैंने उनको देखा. पहली दफ़ा असल ज़िंदगी में. हाँ, सुना तो सबने था, सबने फ़ख्र भी किया था जब एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना था, सब खुश थे. बट 2008 में सितंबर का महीना, अहमदाबाद काफ़ी गर्म जगह है. अगर आप गए हैं तो गर्मी बहुत होती है वहाँ पे. तो वो बंद गला पहन करके वो उतरे. वो तो एग्जीक्यूटिव लाउंज में है, वो लाउंज होता है ना उनका अलग, VIP लाउंज में आए. और चूंकि मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट था तो मेरे प्रोफेसर साहब मुझे साथ लेके गए थे कि आप वेलकम करिए. अभी प्लान ये था कि जो डायरेक्टर साहब थे उस समय, प्रोफेसर समीर बरुआ, उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है अहमदाबाद में. IIM का कैंपस तकरीबन 1 घंटा दूर है. अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो 1 घंटा लगेगा. तो उन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में डॉक्टर कलाम रुकेंगे, सर्किट हाउस में, तो मैं वहाँ मिलने आऊँगा उनसे. आई विल ग्रीट हिम देयर. तो जैसे डॉक्टर कलाम आए, हमने बोला कि सर हमारे डायरेक्टर जो है आपसे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में आपको ग्रीट करने आए हुए हैं, वो बस पहुँचने वाले हैं. तो उनको जैसे ये बात पता लगी, वो वहाँ पढ़ाने आए थे IIM में ना, तो जैसे ही बोले कि अपने वो, उस समय तो मैं उनके साथ नहीं था, आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट, तो अपने PA से उन्होंने कुछ बोला. हाँ, यू फेलो डू दिस. किसी को समझ में नहीं आया क्या बोला, सिर्फ वो लोगों का आपस में समझ में आ गया. और फिर वो बोलते हैं कि ऐसा करो, ये जो कॉन्वॉय है ये सर्किट हाउस नहीं जाएगी,
ये जाएगी IIM। सो हमें लगा नाराज़ हो गए क्या। अच्छा समझ में नहीं आया मेरे को हुआ क्या। उसके बाद 1 घंटे तक ये कॉन्वॉय IIM गई। वहाँ वो डायरेक्टर साहब के साथ मिले, हमारे प्रोफेसर बरवा के साथ, और उनसे बोला, सर आई एम अ फैकल्टी हियर, आउटसाइड आई मे बी एनीथिंग, बट इनसाइड दीज वॉल्स, दीज रेड वॉल्स ऑफ IIM, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ फैकल्टी, एंड यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. यू विल नॉट कम टू ग्रीट मी, आई विल कम एंड ग्रीट यू वेर एवर यू आर. जिंदगी का पहला लेसन बिना किसी क्लास के मैं सीख गया, और वो पहला लेसन था ह्यूमिलिटी का. ह्यूमिलिटी. लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी डोमेन के मास्टर्स होते हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ देयर डोमेन. But the difference between the very, very good and the truly great lies in this small gap called humility. और डॉक्टर कलाम had this humility. एक चीज अगर आप सीख सकते हैं तो ये सीखिए, विनम्रता. हिंदी में बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है. समय कम है, we'll take some things on the question. 2008 से 2009 तक I was in constant communication with him. और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका टाइटल था पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज. 2009 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM अहमदाबाद. आई वाज सपोज्ड टू गो टू बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. आई वाज सपोज्ड टू बिकम अ कंसल्टेंट. और फिर चूंकि थोड़ा समय था तो मुझे लगा कि ये जो 2 महीने का टाइम होता है ग्रेजुएशन और जॉब ज्वाइन करने के बीच में, जो आप में से कई लोगों के बीच में आएगा, कई लोग यंग हैं, और आप लोगों के ये जो बीच का टाइम होता है ना, दिस इज अ very dangerous zone. So it can change your life and I'll tell you how. So मैं से internship कर लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे, दिल्ली में internship कर लेते हैं. So I wrote to him, अच्छी बात है. So अच्छा, then I got a gold medal. So वैसे ही ego तो सर पे था, So I said, so I wrote him an email saying that look, I was a student and we were in constant chat about this pura thing, and I've got this gold medal, and since you were my teacher, I would like to show it to you, show off to you. So तुरंत जवाब आया, yeah, you're a good guy, come. And this guy will connect with you. There's a guy called Mr. R.K. Prasad who used to manage his appointments, and I'm connecting you with him, और उससे आप टाइम ले लो, आ जाओ. So I came. उस दिन पहली बार वो 10 राजा जी मार्ग का घर, जहाँ पे फिर अगले 6-7 साल तक I also lived in that house for many days. तो डॉक्टर कलाम का घर यहीं पास में ही है, दूर नहीं है. पहली बार मैं गया तो उनकी एक लाइब्रेरी थी. फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादातर तो लाइब्रेरी थी एक, और कुछ था ही नहीं. मतलब छोटे छोटे 2 कमरे थे और एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी. तो उन्होंने बोला ऊपर बुला रहे हैं आपको, लाइब्रेरी में बैठे हैं. सो आई वेंट टू द लाइब्रेरी. नाउ आई एम होल्डिंग माई गोल्ड मेडल विच इज एक्चुअली मेड ऑफ गोल्ड बाय द वे, एंड इट इज स्मॉल, बट दैट्स अ रीजन, राइट? इट्स एक्चुअली गोल्ड. सो आई वॉज विद माई गोल्ड मेडल, स्मॉल गोल्ड मेडल इन अ वेरी बिग ईगो. ओके. So I went to his library, and my degree was there, and he said, okay, show me, good fellow. So देखते हैं, कहते हैं, अच्छा, so you've got good marks. I go, yes sir, good. Calculate, what is your percentage? So ठीक है, this is my percentage. Okay, so you've got good education. I go, yes sir, I've got good education. अच्छा, this is a gold medal. Yes sir, real gold sir. It is small but it's real. So he said, oh, so you've got a medal, which means you've got recognition. And can I assume that since you've got a degree and a medal, you have got some intelligence? Yeah, you can assume, of course. So you are blessed with intelligence. You've got the gift of education, which a lot of people don't get. And you also have the recognition of a gold medal. Oh, yes, sir. Total. So he said, and that's what changed my life. He said, if you got recognition, if you got education, and if you've got the privilege, the gift of intelligence, do you not think it is also your responsibility to change and use all these things to change the world and the way the country operates? And that to me was a turning point. That 5 minutes of seeking an internship changed to be a point of colossal change in my life. And since then, that internship continued from 2 months to 7 years. And
And whether you call OSD advisor, all those kind of things. But at the end of the day, I'm a student of Dr. Kalam. If he wants to be remembered as a teacher, I want to be remembered as a student of Dr. Kalam. And at some point, all of you are students of Dr. Kalam. I want to tell the title of this lecture is What Can I Give? And you might be wondering, where does that come from? Right? You're wondering? You see, 2009 mein, I used to work with him in a lot of research and speech and all that stuff. So we were working on this speech of the celebration of a Swamiji who had turned 102 years old. 102 saal. His name is Shri Siva Kumar. ठीक है. So his birthday was 102nd birthday, 2009. So I asked Dr. Kalam, see, this man crossed 100. Now, how does one live for such a long period? मतलब, does one exercise करते होंगे? मुझे लगा कि जैसा बोलेंगे कि ये रोज exercise करते हैं. He knew him very well. Yeah, he must be, on some very heavy diet of something organic खाते होंगे. We have all kinds of notions why people live long. And then I said, your mother also lived 100 plus, your father lived 98. Now, what is the key to live so long? And not only long, because this Swamiji used to stand tall and talk. For half an hour he can talk. So I said, what is the key for people to live long? And he said, there's only one key. And that key message is, the Swamiji always talks about one question. What can I give? That's one question he asks. He feeds 50,000 people. He educates so many people for free. And that is why his conviction, his strength comes from the spirit of what can I give. And since then, Dr. Kalam used to give an oath to everyone. And all of you are his students in some way or the other. Can we take this oath? From today onwards, everything I do, anywhere I go, one question shall always come to my mind. That is, what can I give? What can I give? And Dr. Kalam used to say that, what is the ulta of what can I give? If you reverse it, opposite. What can I take? And Dr. Kalam used to say the only reason for all the problems, whether it is corruption, whether it is environmental degradation, whether it is the loss of human ethics, it's got to do with one thought, which is what can I take? And he wanted all the young people and all the young at mind people to give up this spirit and become and follow the spirit of what can I give. Now you have taken this oath. So ab to aap phas gaye. Now, may I urge you, I know you cannot do it 24/7 perhaps. If you can, wonderful. But if you can't, can I urge you, can I request you, that we are all talking about Dr. Kalam, there are books of Kalam, beautiful portrait in My India, I love that portrait. And all of you are his well-wishers, his followers. Can I request you, if not for 24 hours a day, 7 days a week, can I request you for 2 hours in a week to begin with? 2 hours in a week, be a Kalam. Read about him, know about him, talk about him, listen about him, discuss about him. But for 2 hours a week, be a Kalam. And if you can't start from anywhere else, here's one more oath which Dr. Kalam used to give. You don't need to repeat it, I'll tell you. He said the easiest thing to give is to give to the person who is closest to you. Who's the person closest to you? Yes, specifically which parent? Mother. He said, your mother is closest to you. Can you just do this? Can you just ensure that you make your mother smile every day? That's it. And it's the trigger of so much. And we ran this mission called What Can I Give? You can check it on Wikipedia or anywhere else. Dr. Kalam and I, we started this mission called What Can I Give? We reached about 6 lakh followers.
एंड 6 लाख में से 5 लाख लोगों ने हमें सिर्फ ये लिख के बताया रोज कि हाउ डिड दे मेक देयर मदर स्माइल विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, यू नो, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. You don't need to spend money to make your mother smile. But you will enjoy the process of giving from that moment, and that thing will expand like anything, right? So, and all these, there are many experiences. We have really paucity of time. There are questions which she's got ready. She's already looking at me, and I'm just kidding. And you must have some questions as well. But all these experiences, we are putting together. Penguin is coming out with a book titled as "What Can I Give?" On, you know, a teacher's greatest lesson is his own life. It's not classroom. It's not books. It is books to some extent. It's the classroom to some extent. But more than anything else, the life of a teacher is the biggest lesson. And this book is about the life of a teacher, as I see it from the eyes of a student, on what all you can learn. And it's not about science and math or anything else. It might not get you through JEE, but it'll get you through the test of life. Because the test of life is won by not information, but knowledge. Not smartness, but wisdom. And this wisdom comes from compassion, comes from tolerance, comes from the fact that you treat and you observe things, you appreciate, you criticize in a way Dr. Kalam never criticized. His criticism came as an alternative. He will never criticize, and that's a policy he had in life. Never criticize anyone unless you have an alternative. Unless you suggest an alternative, you do not have the right to criticize. Till his last moment. About gratitude. A lot of you would have read that last 8 hours with Dr. Kalam, where he thanked the security guard who was standing for him for 3 hours. And he thanked him. Gratitude. And as I conclude, something about the teacher. At IIM Shillong, we had a class at 6:30. So we reached slightly earlier. We reached about 5:45. And then he called the security guard who was in our pilot vehicle. So he called him, thanked him. It was about 6:20, 6:25 almost. And then he said, "You go," I say. You know, he had his own way of saying. So you go. We have to go. So I said, "Sir, we've got 5 minutes." He said, No. If you don't go now, and he's losing his tea. He's saying, "I'm not going to finish the tea thing. We'll have it later. But I need to rush to the class." And the class is about 5 minutes of walk. It's a hilly area. It's like walking up a hill. And he said, "Look, students are waiting." And then he said this about teachers. And many of you are teachers. Many of you are parents, and parents are also teachers. A teacher should not make his students wait. हम लोग उल्टा बोलते हैं ना. A student should not make teachers wait. He said a teacher should not make students wait. Because a teacher, if the student's privilege is to be taught, a teacher's privilege is to be listened and heard. It's also a teacher's privilege. To be a teacher is a privilege. And you have to be grateful to your students just as your students have to be grateful to you. That is the hallmark of a teacher. And that is why Dr. Kalam is not just a teacher. He's the teacher of teachers. He's the guru of guru. And even in his, he's no more with us in a physical form. But his ideas, in his writings, in his followers, in people, some of you young guys, you might turn up, doing something along Dr. Kalam's vision. He lives in all of us. And he will continue to live in all of us. And I hope to see some questions around it. I hope to see some action around it. I hope to be in touch with you on all these issues. Thank you for your time. Thank you for your attention. Hello. Mine is working. Okay, everything is working here fine. We would go. The last row should be able to hear us. Okay, the last row, can you hear us? Okay. I would like to begin my question, and I would pose it to both of you. The first is the generic problem that we have
nobody wants to teach. Like, you know, if you go to a class and if you ask students that how many of you want to be a teacher, there would hardly be, maybe in a class of 50 students, maybe 2 students would raise their hands. Maybe sometimes nobody would raise their hands. So what is the problem that we are finding here? Why is it not glamorous enough? Is it because, you know, we have not been able to give back as much to our teachers as we have gotten from them? Because I see when we go back to our school and we talk to our teachers, just the mere act that you have gone back to school and you have said thank you, you know, wherever I stand today, it is because you have taught me something. It surprises them. So is it because we are not doing it enough? So I would like to know why, you know, where is the lacuna lying according to you? What can be done? मतलब अगर एक क्लास में आनंद पहले आप बात कीजिए सृजन और फिर हाँ. Whatever you say. Okay. So I get your question. Basically, why is teaching not considered a job which anybody wants to do? Right. Right. See, you're right in the sense that, you know, today I was at an IT, I was telling you, in the green Right. room. You know, I asked, how many of you want to become engineers, this, researchers? How many of you want to go back into teaching? And one hand goes up. How many of you want to become political leaders? 2 hands go up. So there is a problem. And as I see it, I think there are 2 or 3 issues here. First of all, our teachers, are they doing the teaching alone? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, गवर्नमेंट टीचर से बात करिए, तो एक तो nobody sure कि is teaching the only job is they doing. So there are a lot of election duty में लगा दिया आपने, उनको जनता गिनने में लगा दिया, जनसंख्या गिनने में, उनको कोई competitive exam हो रहा है उसकी ड्यूटी में लगा दिया. So it's a very diversified. So they are being used as fodder, you know. जहाँ भी जरूरत पड़े plug in कर दो उसको. So it's like one of those. So you're not giving dignity to the job of teaching itself, which means, you know, teaching का job ऐसा है इसको आप छोड़ करके कुछ और काम करवा सकते हो. दूसरी बात, आप ये सोचो कि who decides syllabus? जो टीचर्स को पढ़ाना है वो कोई और डिसाइड करता है, खासतौर से प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को. जो टीचर्स का टाइम टेबल है वो भी कोई और डिसाइड करता है. कब स्कूल खुलेगा, कब बच्चे आएंगे, क्या पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे, ये सारा काम कोई और डिसाइड करता है. टीचर का काम है वो लास्ट माइल डिलीवरी. इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट ऑल. आप ये सोचो कि फॉर एग्जाम्पल 25 साल की उम्र में एक IAS ऑफिसर है. नोबडी इज IAS ऑफिसर, राइट? नोबडी. कोई है तो बताएगा भी नहीं. थिंक अबाउट इट. 25 years की एज में देयर कम्स एन IAS ऑफिसर हु स्टार्ट्स हेडिंग द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन. ठीक है? This 25-year-old IAS officer is going to dictate what 25 years worth of experience of teachers will teach. Power gap itna bada hai. And there's a lot of teachers who complain to me that why should we be told, why we have no say in what we are going to teach. So in fact, one of the missions of Dr. Kalam talked about was to have, if administration is important, if police is important, if engineering is important, if even Indian postal services are important, why don't we not have an Indian teaching services? Why don't we get the best of this crowd to become the best of teachers? So I think that's my take on it. I'm sure Anand has a lot more to say from a very different angle. Yeah, before Anand आप इस पे शुरू करते, मैं बस एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि कई बार, you know, we lead by example rather than saying ये करना चाहिए, we show. तो we have an example. I'm sure a lot of people जब वो आनंद को देखते होंगे, उनके बारे में पढ़ते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि ऐसा टीचर बनना चाहिए. You know, so जैसे like that's yeah, exactly. Like Anand आपने जैसे शुरू किया, okay, you can begin answering the question, but that is my take on it. As he said, you know, don't just raise a question, give a solution. So ये हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे चाहे कितने छोटे हो या बड़े हो गए हों, एक अच्छा शिक्षक मिल जाए और इनकी जिंदगी बदल दे. लेकिन शायद पूरे देश नहीं दुनिया में ऐसे पेरेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि हमारा भी बेटा या बेटी बड़ा होकर एक शिक्षक बने. ये सच्चाई है. तो हमारे सामाजिक जो वातावरण है उसमें ही कोई शिक्षक नहीं बने, इसके लिए लोग निश्चिंत रहते. शिक्षक बने इसके लिए प्रयासरत बहुत कम लोग रहते हैं. क्यों रहते हैं? ऑनेस्टी की बात की जाए,
हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं सिद्धांतों की, बहुत सारी बातें करते हैं वसूलों की। सत्य है, होना भी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टी के साथ पूछा जाए, आज हमारे देश के युवा हैं, क्यों बनेंगे टीचर? अब उनमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक देहात के गांव में आप इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जाकर टीचिंग कर सकते हैं देश के सेवा की भावना से, बहुत कम लोग मिलेंगे। लोग ग्लैमर खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, सुविधाएं खोजते हैं। तो हमारा मानना है कि इसमें गवर्नमेंट के तरफ से पहल होनी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। पहल ये होनी चाहिए कि टीचर में भी जितने भी टीचर्स हैं उनकी ग्रेडिंग होनी चाहिए, ABC। जो अच्छा काम करते हो, जो अच्छे ढंग से पढ़ाते हो, जिनका फीडबैक काफी अच्छा आता हो, उनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। जो टीचर उससे कम पढ़ाते हैं उनकी सैलरी कम होनी चाहिए। तो जब तक शिक्षकों में, बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है, बच्चों में कंपटीशन होता है, एक बच्चा दूसरे से गला काट प्रतियोगिता करता है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, लेकिन टीचर सुस्त हैं, उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, पढ़ाए या ना पढ़ाए इतनी सैलरी मिलेगी। तो जो पढ़ाने वाला शिक्षक है उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जागृत होती है कि अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, रात रात भर जग के इनोवेशन कर रहा हूं टीचिंग के लिए, मुझे क्या दे रही है सरकार, मुझे क्या दे रहे हैं पेरेंट्स। तो ये कुछ दिया जाए, जो भी इनकी बात हो रही है, तो सरकार के तरफ से, स्कूलों के तरफ से, समाज के तरफ से ऐसा होना चाहिए। और ये सर्वे करके अवार्ड मिलता है, हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर लोगों को सम्मान करते हैं, लेकिन सच में और भी ज्यादा मात्रा में लोगों को सम्मानित करने की जरूरत है, उनके सैलरी बढ़ाने की जरूरत है। तो जब तक उस जॉब में प्रतिष्ठा नहीं आएगी, उस जॉब में पैसा का स्कोप नहीं दिखेगा, उस जॉब में ग्लैमर नहीं आएगा, हमारी युवा पीढ़ी को नहीं लाया जा सकता है। हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल लें, लेकिन सच्चाई यही। आनंद, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब एक किस्म की मेरिट बेस्ड प्रमोशन जैसे कि हर ऑफिस में होता है। जी, एक चीज और मैं ऐड करूंगा जो आनंद जी ने बोली, स्पेशली ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एरियाज में कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं है। सो ये जो करियर प्रोग्रेस होती है, इज देयर अ कोर्स विच रिफ्रेशेस देम? क्योंकि इतनी तेजी से नॉलेज इज चेंजिंग। आज की डेट में 50% ऑफ व्हाट यू नो will become obsolete in 13 months. The half-life of knowledge is 13 months. And I'm quoting a data on this. Now imagine a teacher is supposed to teach this to the youngest people. क्या टीचरों को रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको हर 2 साल 3 साल पे कहीं भेज करके उनको रिफ्रेश किया जाए और उनको आनंद जी के मॉडल से लिंक किया जाए, जो उस कोर्स में अच्छा करें उनको A ग्रेड में डाला जाए? सो वो रिफ्रेशर कोर्सेज की भी बहुत आवश्यकता है, ताकि टीचर्स को लगे कि आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग। अदरवाइज वो तो डंप हो गए। आप एक बार टीचर बन गए, आप 60 साल में रिटायर होना, दैट शुड नॉट हैपन। दूसरी एक चीज मुझे लगता है कि अगर एक उन्हें जोड़ा जा सके, इफ देयर कुड बी लाइक फेसबुक पे सारे लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, you have people connecting with each other. There should be a network, where specifically for teachers. Absolutely. एक चीज इनफैक्ट हम लोग बना रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट द कलाम टीचर्स नेटवर्क। ओके। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि आप क्लासरूम में जाते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। सोलर सिस्टम को पढ़ाने के कई इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आप घर में भी पढ़ाते हो। तो ये इन सारे जो कंपाइलेशन है इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है, और आप तो उस लेवल पे पढ़ाते हैं, बट मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल लेवल पे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ क्या क्या इनोवेटिव तरीके हैं पढ़ाने के। वी वांटेड टू बिल्ड, सो वी आर बिल्डिंग दिस पोर्टल वेयर एनीबडी, and Kalam Saab was a great teacher. He wanted to be remembered as a teacher. So any innovative teacher can come up with their solution. Then you can link them together based on innovation in teaching. So आप positive thought पे उनको link कर सकते हैं. So we are coming up with that, and I am sure Anand will have something to. बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में जाइए बच्चों को, या प्राइवेट स्कूल में जाइए, 28, 38 बच्चे मल्टीप्लाई करो, तो 8 डिजिट से मल्टीप्लाई किया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करने की बात है तो एक कॉलम हट जाते, फिर खट खट जोड़ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? टीचर्स नहीं समझाते। तो क्यों? क्योंकि बहुत हद तक हम किसी शिक्षक की शिकायत नहीं कर रहे हैं, शायद वो भी अपने समय में ऐसे ही सीखे होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, पूछिएगा बच्चे बहुत कम बताएंगे।
तो जब तक हम लोग बच्चों को रुचिकर तरीके से न पढ़ाएं और टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग न दी जाए कि कैसे इंटरेस्टिंग ढंग से सब्जेक्ट को रखा जाए बच्चों के सामने, तब तक शिक्षक का और महत्व नहीं बढ़ सकता है। अगर हर शिक्षक को ये सिखाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जैसा कि अभी सृजन जी ने बोला, वो रुचिकर तरीके से दुनिया से जोड़ के, सोसाइटी से जोड़ के बच्चों को कन्विंस करते हैं, पढ़ाते हैं, तो जरूर ऐसा होगा कि उनका सम्मान बच्चों की नजरों में बढ़ेगा और फिर आने वाले टाइम में लोग टीचर बनना चाहेंगे। सृजन, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ओवरऑल एक लर्निंग प्रोसेस जो है हमारी सोसाइटी की, तो ओवरऑल इस लर्निंग प्रोसेस को क्या हार्म कर रहा है? हमारे यहाँ कोई एक इंटरनेशनल बेंचमार्किंग क्यों नहीं है? नहीं है, Like, हमारे इंटरनेशनल बेंचमार्किंग नहीं है, दुनिया में है जी। मतलब उस So there's a- लेवल और उस इंडेक्स पर एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं जी। पीसा, PISA, जी उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। जी। 2009 में हमने पीसा में पार्टिसिपेट किया और हमने कहा कि हम तो पीसा क्या होता है कि दुनिया भर के जो देश है उनकी शिक्षण प्रणाली के ऊपर परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, स्टूडेंट असेसमेंट क्या है, सो उसके ऊपर अलग अलग देशों को एक साथ रखा जाता है और रीडिंग, साइंस और मैथ के ऊपर इंडेक्स बनाया जाता है कि कौन नंबर 1 पे, कौन आखिरी पे। तो इंडिया ने 2009 में पार्टिसिपेट किया था। लेटेस्ट डेटा विच आई नो ऑफ है 2009 में हमने, और चूंकि हमारी भाषा अलग अलग होती है और हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, इसलिए हमने अपने सबसे 2 बढ़िया कैंडिडेट्स को भेजा, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश विच इज वेरी गुड इन एजुकेशन, और साउथ में तमिलनाडु, केरला बड़े अच्छे हैं, तो तमिलनाडु को आगे भेज दिया। सो वी सेंड दीज 2 स्टेट्स। And in reading, we were number 1 and 2. In science, we were number 1 and 3, and in math, we were number 1 and 3 from the bottom. Now, there's a benchmark problem. International benchmark में हम demographic dividend की बात करते हैं, but multiplication by 0 हो जाता है। अभी आज सुबह NIT में था, इससे पहले IIM कैलकाटा में I was taking a lecture पिछले हफ्ते, and I asked them कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, आज की बात है, अभी 2 घंटे पहले, जो गवर्नमेंट स्कूल से आए। 350 बच्चे, NIT दिल्ली, ये चंडीगढ़ की तरफ पड़ता है, 350 बच्चे, उनमें से गिन करके 14 बच्चों ने हाथ उठाया। फिर मैंने कहा इन 14 बच्चों में से आउट ऑफ दिस 14 जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं वो अपना हाथ नीचे कर दें, विच इज आर क्रेमेला क्रीम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, राइट। टोटल बचे 3 बच्चे स्टेट बोर्ड्स के गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से आकर के उन 350 बच्चों के बीच में बैठे थे। कितना परसेंटेज होता है? 3 out of 350, लेस देन 1%, करेक्ट। लेस देन 1% किड्स कम फ्रॉम स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल्स, और इन स्कूल में हमारे 70% बच्चे पढ़ते हैं। 70% बच्चों का रिप्रेजेंटेशन लेस देन 1% है हमारे NITs में। IIMs में इससे भी बुरा हाल था, पूरे IIM में 1, IIM कैलकाटा में 1 गवर्नमेंट स्कूल, 300 बच्चों में से 1। There is somewhere where we are lacking on the representation and the quality of our government school education। और होता ये है कि वो अभी दिल्ली के अंदर ही आप देख लो कि अभी एडमिशन सीजन आएगा, एकदम हंटिंग सीजन चालू होता है, एंड यू गॉट लाइक 20-30 schools which are really good, no doubt about it, and then you have a whole vacuum, and then somewhere under this are a bunch of government schools which nobody even takes cognizance of. And I want to add something. Find me a bureaucrat whose children are studying in government school. Find me a minister whose children are studying in government school. Maybe we should mandate it. नहीं, we should mandate it. आप इसको संभालते हो, आपके बच्चे तो इसी में पढ़ने चाहिए, पहले खुद तो देखो क्या है। So there's a problem, right? इस समस्या पे मेरे ख्याल से आनंद कह सकेंगे, बिकॉज इनके स्टूडेंट्स या आपने जहाँ से आपके अधिकतर स्टूडेंट्स इसी स्ट्रैटा को बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस समस्या का एक छोटे लेवल पर ही सही तोड़ आनंद के पास है, एंड समथिंग दैट हैज वर्क फॉर 14 ईयर्स, 14 साल तक लगातार ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट, तो वो क्या फॉर्मूला है? दरअसल में सृजन जी जो बात बोली अभी इन्होंने कि 350 बच्चों में 3 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से थे, जो केंद्रीय विद्यालय के नहीं थे, बहुत दुखद है। लेकिन इसको मैं पॉजिटिव के तौर पर देखता हूं कि आप सोचिए कि हमारे देश के लगभग सभी गांवों में चले जाइएगा, कोई स्टेट हो, तो कैसे स्कूल मिलेंगे जहां खिड़की नहीं है, दरवाजे चोरी हो चुके, शिक्षक नहीं आते हैं,
बच्चे लौट जाते हैं, खाना के लिए जो मिड डे मील मिलता है उसके लिए बच्चे आते हैं, कभी उसमें भी कीड़ा और छिपकली मरी हुई मिलती है, बावजूद इसके बच्चे पढ़ते हैं। और एक गांव में जाने पर अभी भी ये दृश्य नजर आता है कि एक लंटेन जला हुआ है, एक दिया जला हुआ है और उसे घेर के 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचिए कि उस परिस्थिति से भी 3 बच्चे हमारे देश में इतना प्रतिभाशाली हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मात देकर आज उस संस्थान में पहुंचे हैं। इसको हमको पॉजिटिव के तौर पर देखना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं लगभग 1-2 की बात छोड़ दी जाए, सब गवर्नमेंट स्कूल से ही आते हैं और उनमें उत्साह भरने की बात होती है, उनमें ये सिखाने की बात होती है कि तुम कर सकते हो। उनमें थोड़ा से अच्छे से उनको उत्साहित करके हम लोग पढ़ाते हैं तो उसका परिणाम इतना बढ़िया आता है कि पूछिए मत। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये प्रयास अगर सरकार करती है और अच्छे से प्रयास करती है तो यही बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए भी पत्थर का सीना तोड़कर सामने आएंगे और पूरी दुनिया इसको सलाम करेगी। आने वाले भारत का भविष्य ही मैं देखता हूं। आपसे एक और सवाल आनंद इसी सिलसिले में, आप जो स्टूडेंट्स को चुनते हैं तो वो क्या पैमाना होता है? क्योंकि इस सक्सेस रेट को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि सुपर 30 में ये जो 30 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि आगे जाके आपके उत्साह भरने के बाद वो इतना बेहतरीन करते हैं, तो आखिर वो कौन से बेंचमार्क्स होते हैं? आप किस आधार पे, या वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? अभी जो हमारे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है, कोई लोग अफवाह भी करते हैं इस बात पर कि भाई दलित या जो आदिवासी बच्चे वैसे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ किसी तरीके से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं। चाहे आप सामान्य वर्ग से आते हो, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से आते हो, दलित हो, अगर आप में प्रतिभा है, हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हो, देखते हैं कि आप में रियल टैलेंट है, बच्चों में कुछ करने का जुनून है, कुछ भी करने के लिए रात भर वो जग सकता है हमारे साथ, तो बातचीत के आधार पर मैं उसे सेलेक्ट करता हूं और वो बहुत अच्छा करके दिखाता है। एक स्टैटिस्टिकल बेसिस पर ये जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे जिसको कि प्योर मेरिटोक्रेसी कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ उनके एक टेस्ट के लेवल पे लिया जाता है और पढ़ाया जाता है, इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो ऐसे होने की चांसेस क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? कि ये छोटे लेवल पे है, इतनी छोटे लेवल पे चीजों पर, लेकिन अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो चीजें बिखर जाती हैं। क्लियरली पूछिए। ओके, ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट मैं समझ गया। तो आप आर यू ट्राइंग टू से कि मेरिटोक्रेसी शुड बी अ बेंचमार्क इन द? नहीं, ये जैसे दो चीजें, वन मेरिटोक्रेसी एंड दूसरा कैन दिस बी ट्राइड ऑन अ बिगर लेवल, जो कि जैसे आनंद आप जैसे 30 स्टूडेंट्स। अच्छा, दिस इज आनंद डोमेन, बट इफ यू अलाउ मी आई विल intrude in it. But I think what we need is a lot of Anand. आनंद जी का मॉडल इसलिए तो चलता है कि बच्चे हैं, बट इसलिए ज्यादा चलता है बिकॉज एक कमिटेड शिक्षक है। तो यहां में इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने हम आनंद को इंस्पायर कर सकते हैं पूरे देश में। ये मॉडल उसी तरह स्केलेबल है। दिस इज अ मॉडल विच इज ऑर्गेनिकली स्केलेबल। आपको उसको अलग अलग जगह, आपको अलग अलग आनंद खड़े करने पड़ेंगे, और शायद आपको IIT के बियॉन्ड CPMT में भी खड़ा कर दीजिएगा, एक IS भी बना दीजिए। So then you can transgress this whole boundaries of जो economic depravity है, जो government school versus private school की हम बात कर रहे हैं, 5-star school versus negative star school, ये जो विषमताएं हैं, इसको कॉन्कर करना है अगर, तो आपको बहुत सारे आनंद बनाने पड़ेंगे। अब आनंद बहुत सारे कैसे बनाएंगे ये आनंद जी खुद बताएंगे। वो कौन सा सुपर 30 होगा? उसके लिए हमें इनकी माँ से बात करनी पड़ेगी। हम अब आनंद आपकी किताब आने वाली है, तो आप जरा उसके बारे में अगर हमें बताएंगे तो, बिकॉज वी आर राइट ऑन टाइम। सो अभी करीब 3 साल हो गए। 3 साल पहले वैनकूवर में साउथ एशियन एसोसिएशन ने मुझे बुलाया एक लेक्चर के लिए। उन लोगों का एक गाला डिनर था, उसी पर उन्होंने कहा कि आप आइए, तो मैं वहां गया। प्रोग्राम में जितने लोग थे
सब बहुत उत्साह से मुझे सुना। हमारे कार्यक्रम को खत्म होने के बाद एक वहां बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं वैनकूवर का, डॉक्टर विजू मैथ्यू, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और अपने घर पर बुलाया। मैं उनके घर गया। उन्होंने कहा कि मैं जो भी लोग हैं, मैं मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों का इलाज करता हूं, तो क्या करता हूं कि मैं उनका हिस्ट्री लिखता हूं, उनकी कहानी सुनता हूं और उनकी कहानी को मैं लिखता हूं। तो वो मैं लिखना चाहता हूं आपकी कहानी। मुझे एक्सपीरियंस है, आज तक हमने किताब नहीं लिखी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी कहानी मैं अच्छे ढंग से लिखूंगा। यह घटना के करीब 6 महीना पहले पेंगुइन से ही, रैंडम हाउस से ही राधिका जी ने मुझसे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि भाई कोई किताब लिखना चाहे आप पर तो लिख सकते हैं, मैं इसे पब्लिश करूंगी। तो मैं सोचा कि भाई कौन राइटर होगा, कैसे राइटर होंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग बात विचार कर ही रहे थे। तो विजू मैथ्यू ने ये प्रपोजल दिया, मुझे अच्छा लगा। उनका एक मित्र रॉबर्ट प्रिंस वहां एडिटर का काम करते थे, उन्होंने कहा मैं भी इस किताब में सहयोग करूंगा। बहुत लंबी बात हुई, 2 दिन तक बात चली। मैंने राधिका जी को बताया। मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, आज तक इतना जो भी पब्लिकेशन कंपनी को मैं जाना हूं, इतना मेहनत करने वाला किसी को नहीं देखा जितना राधिका जी ने इसे कोऑर्डिनेट करने में मेहनत किया। कई बार तो लगी कि किताब लिखी ही नहीं जाएगी क्योंकि वो डॉक्टर हैं। अब वो 4-5 बार इंडिया आए, बच्चों के घर गए, बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों के घर गए, वहां तक देखा कि बच्चे कैसे रहते हैं। उसी खाट पर मच्छर को कटवाते हुए रात गुजारी जहां बच्चा सोता था। हमारे पिताजी रेलवे मेल सर्विस में बैग उतारना चढ़ाना भी उनका काम था। उसी बॉगी में वो गए, कलकत्ता गए, पटना से BHU गए, बहुत जगहों पर करीब 4 बार इंडिया आके उन्होंने रिसर्च किया और अपने रिसर्च को दिया। लेकिन अब उनके साथ समस्या हो जाती थी कि टाइम नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे किताब पूरी हो चुकी है और मैं धन्यवाद देता हूं राधिका जी को कि इन्होंने इस तरह से एडिट किया कि अभी मैं पढ़ रहा था तो ऐसा फ्लो हुआ कि जैसे गाड़ी चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत अच्छा फ्लो किताब। We will be bringing the session to a close and opening the floor for questions. We have an ideal student, like somebody who aspires to be like Dr. Kalam would like to be remembered as a teacher. You'd like to be remembered as a perfect student, you know, somebody who followed his उनके नक्शे कदम पर आप चलते आए हैं. And obviously when you have a mentor who's, you know, who's so knowledgeable, who's an ideal guru. And on the second hand, we have somewhere close to an ideal teacher, you know, somebody how you can actually mentor a group of underprivileged children to compete in something as good as the IIT. So you have an ideal student and you have an ideal teacher. So I would like to open the floor now to any questions that you would like to ask these people. And yeah, I know there should be. आनंद सर से क्वेश्चन पूछना था कि मैं 10th से 11th क्लास में जा रहा हूँ, तो मुझे 11th 12th में साइंस स्ट्रीम ली है, तो मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, ये बड़ा कॉमन सवाल है एक शिक्षक के लिए। पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचना। हम बच्चों को ही सिखाते हैं कि आप जो भी आपका गोल है उसको एक टारगेट करिए, और जब सुबह होती है तो आप उसी टारगेट के साथ उठे और उसे पूरा करना है सोचते रहे। तो और करते 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 जब शाम होती है, रात होती है, तब भी आपके दिमाग में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के फार्मूले, सवाल सब आते रहने चाहिए। तो आप कितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सोचते हैं, उस कॉन्सेप्ट के साथ आप कितना जीते हैं, पॉजिटिव माइंड कितना है और कितना आप में पेशेंस है। बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिलती है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगे हुए रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, घंटा और मिनट इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और चीज, कैसे पढ़ना चाहिए? पटना आइए, 2 दिन मैं आपके बच्चों को साथ रखूंगा, बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए। सर, आनंद जी इधर सामने। मैं मेट्रो न्यूज से हूँ, उमेश सिंगला जी। दोनों से मेरा सवाल है। अभी दिल्ली पुलिस के एक SHO साउथ दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में गए थे,
वहाँ उन्होंने बच्चों से इंटरेक्शन किया, जो आजकल की प्रॉब्लम समाज में है। एक लास्ट क्वेश्चन उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप में से कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं? तो हार्डली 10% ने आंसर दिया कि हम पढ़ना चाहते हैं। जब प्रिविलेज क्लास के प्रिविलेज स्कूल के बच्चों का ये हाल है कि 90% बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप क्या कहना सर इस बारे में? प्लीज सृजन जी और अच्छा ठीक दोनों से। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आज भी स्कूलों में देखिए, अब तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है। हम लोग अपने जमाने में देखते थे, आज भी ऑलमोस्ट वैसा है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही। जैसे ही छुट्टी होती है स्कूल के, बच्चे हल्ला करते हुए निकलते हैं जैसे जेल से छूट गए। तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि उन्हें आजादी मिल गई। तो कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर हैं वहां पर। तो जब तक हम बच्चों को रटाना नहीं बंद करेंगे, जब तक हम बच्चों को थोपना चीजों को पसंद नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये बातें खत्म नहीं की जा सकती है। बच्चे पढ़ाई को जिए, उसको समझे, उसको इंजॉय करें, इस बात की जरूरत है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में, हमारे स्कूल में कितने अच्छे शिक्षक हैं और कितने अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, और उन अच्छे शिक्षक को बनाने में हम लोगों का क्या योगदान हो सकता है। अच्छा, मैं जवाब दूं इसका? देखिए, हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है, चलेगा ना? हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं, नीचे से शुरू करिए और ऊपर तक जाइए। जो प्रेसिडेंस है ना, नीचे की चीजों का एकदम कम है, ऊपर आते आते यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस है। हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो ब्रेन का कैरियर बन गया है। उसका काम है दिमाग को ढोना, और दिमाग का भी बायां हिस्सा ढोना, क्योंकि वो लॉजिक है। यहाँ पे क्रिएटिव है, यहाँ पे लॉजिक है, ये डांस है, म्यूजिक। कहाँ सिखाया जाता है? क्या आप अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव? नहीं, सब लॉजिक करो, सब मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, सब फिजिक्स करो, इक्वेशन सॉल्व करो, केमिस्ट्री की इक्वेशन रट लो, और फिर अगर बहुत अच्छे हो तो इंजीनियरिंग में चले जाओ, थोड़े कम अच्छे हो तो पीएमटी कर लो अगर मैथ नहीं आती, अगर वो भी नहीं आता तो कॉमर्स कर लो, अगर वो भी नहीं आता तो आर्ट्स कर लो, फिर आईएएस कर लेना, वो भी नहीं आता तो राजनेता बन जाना। दिस इज द प्रॉब्लम। हम बच्चों को एजुकेशन इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि जो उनको पसंद है वो हम उनको बताते ही नहीं है और उसको करने का मौका नहीं देते। जेल इसलिए लगता है क्योंकि जेल में क्या होता है, आदमी अपने हिसाब से काम नहीं करता, आप अपने हिसाब से जा नहीं सकते, आपको चक्की पीसनी पड़ेगी, दूसरा बोलेगा क्या करना है। यही हाल है। हम बच्चों से ये नहीं पूछते आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। हर जगह ये हाल है, और इसके लिए सिर्फ आप स्कूल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। Let's encourage children to become dancers if they want to. क्यों इसकी कोई अहमियत नहीं है डांस की? क्यों स्पोर्ट्स पीपल की कोई अहमियत कम है? थोड़ी बढ़ रही है या सुधर रहे हैं, वहां पे हम थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन इतना नहीं है। और क्यों ऐसा है कि जो राइट ब्रेन पेंटर बनना चाहता है नहीं बनने देंगे हम, राइटर बनना चाहता है बड़ा मुश्किल है। आई नो ये राइटर्स का कॉन्क्लेव है ठीक है, बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये अफेक्ट करती है एक्चुअली अपर क्लास में ज्यादा, क्योंकि जो आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें वहां पेरेंट्स उतना ज्यादा अवेयर ही नहीं होते कि इस करियर का क्या है, उस करियर का क्या है, वो उतना इंटरफेयर नहीं करते। वहां टीचर का रोल ज्यादा हो जाता है। बट ये जो जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली वाले की, उसमें आई ब्लेम द पेरेंट्स एज मच एज आई ब्लेम द टीचर्स फॉर दिस टू हैपन। फिनलैंड में आप जाइएगा, बड़ा अच्छा देश है। फिनलैंड में क्या करते हैं, 6 साल की उम्र तक बच्चे को कुछ नहीं सिखाया जाता। जो हम कहते हैं कुछ नहीं सिखाया जाता, ये मेरी भाषा है और आपकी भाषा है, क्योंकि कुछ नहीं सिखाया जाता का मतलब अक्षर नहीं सिखाया जाता, अंक नहीं सिखाए जाते, जोड़ना घटाना नहीं सिखाया जाता, लेकिन उसको सिखाया जाता है दीवारें पेंट करना। आप दीवार लो, जो मन में आए बना दो, 6 साल तक यही बनाते रहो, ताकि बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट आ गया है। और वहां पे तो, यहाँ पे तो लेबर कॉस्ट बहुत कम है, वहां तो बहुत ज्यादा होता है। तो वीकेंड पे आके पेरेंट्स उसको वापस व्हाइट वॉश करते हैं, फिर 5 दिन तक बच्चे उसको फिर से रंगते हैं। एंड दिस इज हाउ क्रिएटिविटी इज इनकरेज। 6 साल बाद अक्षर सिखाए जाते हैं। तो शायद हमें बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। हम इसमें एक लाइन जोड़ना चाहेंगे। सृजन पाल जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। सच्चाई ये है कि भाई एक बार मैं एक घर में गया, छोटा बच्चा था, 10 साल का, 8 साल का।
और वो अपने बाप से लड़ाई कर रहा था, पिताजी से। क्या बात है भाई, क्या बहस चल रही थी? हम जैसे ही गए, हमको बोला बच्चा, अरे पिताजी हम पर पढ़ाई थोप रहे हैं, 3 इडियट फिल्म नहीं देखा, तारे जमी पर नहीं देखा, हम पर पढ़ाई थोप रहे। बेचारे बाप का भी तो दर्द समझिए। कितना देश में हमारा है गरीब जो डांसर बन जाता है, कितना देश में हमारा गरीब है जो फुटबॉल प्लेयर बन जाता है। हम बच्चे को उसके शौक के अनुसार बढ़ाएं, ये जरूरी है, लेकिन एक समान शिक्षा में भी उसकी रुचि बढ़े, ये इससे भी जरूरी है। इन्होंने फिनलैंड की बात की, इंग्लैंड की बात की, वहां भोजन का अभाव नहीं है। हमारे देश में अगर यही परंपरा चली तो यहां भूखमरी हो जाएगी। इसे समान शिक्षा कैसे अच्छी हो, इस पर भी विचार करना सबसे अहम। इस पे सिर्फ एक पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा आपने जो कोर्स किया था जिसके कारण डॉक्टर कलाम आपकी जिंदगी में और ये सारा कुछ हुआ, इट वाज अ स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर अ स्पेशल कोर्स, राइट? कैन यू जस्ट नरेट दैट पॉइंट टू द पीपल? एज एन चेंज कभी कभी एक छोटा सा चेंज होता है, यू डोंट हैव टू चेंज द एंटायर सिस्टम इन अ डे, लेकिन एक छोटा सा चेंज से चीजें काफी आगे तक जाती है। जैसे एक स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्स था, कैन यू जस्ट टॉक अबाउट? नहीं, एक्चुअली IIM में तो सारे कोर्सेज स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं। एटलीस्ट अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। सो यू कैन डिसाइड आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि हम किसी बिल्कुल ही बाहरी आदमी से पढ़ना चाहते हैं, आप उसको भी यू कैन गो एंड अप्रोच देम। आपको लगता है कि कोई कोर्स ऐसा है जो अच्छा नहीं है, तो उस पर अगर कोई स्टूडेंट वोट नहीं करेगा तो वो कोर्स वोट आउट हो जाएगा। सो वो एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग कोर्सेज, बड़ी मैच्योरिटी चाहिए होती है। हाँ, सो आई थिंक स्टूडेंट्स को एक फीडबैक देने का मौका मिलना चाहिए अपने टीचर्स के बारे में। एंड आई थिंक ही वाज मेंशनिंग, जब वो ABC कैटेगरी की बात कर रहे थे, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू कम फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, 10% बच्चे बोल रहे हैं हम पढ़ना ही नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं उस टीचर की रेटिंग पे असर आना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये साउथ दिल्ली स्कूल की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहे थे। सो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। तो आई एग्री कि स्टूडेंट शुड हैव अ से, बट ओनली एट एन एज। हायर एजुकेशन में आई थिंक स्टूडेंट डेमोक्रेसी को तो हमने दूसरी तरीके से ले लिया। आई कम टू यू। हाँ, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं, आई जस्ट कम टू योर कोर्स। सो द थिंग इज कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी को हमने दूसरी तरीके से ले लिया है। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ और उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल दिल्ली में काफी चर्चाएं होती हैं। उस चर्चा में स्टूडेंट डेमोक्रेसी को हमने सिर्फ एक राजनीतिक डेमोक्रेसी के रूप में ले लिया है। अफसोस है कि ये डिस्कशन हमारे ड्राइंग रूम का डिस्कशन बना था, क्योंकि स्टूडेंट डेमोक्रेसी सही मायनों में एजुकेशन की डेमोक्रेसी है। A university is supposed to teach, and a democracy in university, like in my institute in IIM Ahmedabad, is democracy on choosing what has to be taught and how it has to be taught and who will teach it. This is democracy. और we need to redefine the students' democracy itself. Can I ask the next question? Over here. सर, मेरा नाम वैभव तिवारी है। मैं दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है। पिछले साल की बात है, आपके 2 स्टूडेंट्स यूपी के जो पास आउट हुए थे, आनंद सर, उनके पास इतनी फीस भी नहीं थी कि वो एडमिशन क्रैक करने के बाद भी वो फीस भर पाए, IIT ज्वाइन कर पाए। अभी रिसेंट में भी न्यूज आया है कि IIT की फीस को 200% बढ़ाया जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो गरीब लोगों को, गरीब स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है? आज इस पर हमने कई टेलीविजन चैनल वालों को बताया भी, बोला भी कि अभी एक खबर आई कि IIT अपने फी को तिगुना करने जा रहा है। तो ये बहुत अन्यायपूर्ण है। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि काउंसलिंग फी जो 40,000 रुपए थे, जैसा कि अभी बताया इन्होंने, वो भी बच्चे देने में असमर्थ थे। ये खबर आई थी, कई लोगों ने सहयोग भी किया और वो बच्चा आज IIT बॉम्बे में पढ़ भी रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ने में काफी मुश्किलें हैं, पैसे नहीं रहने के चलते। तो बहुत अहम बात है कि सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि जो फी बढ़ाई जा रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आज HRD मिनिस्ट्री से भी रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर पुनर्विचार करें, फी ना बढ़ाएं और जो फी है उसमें भी लोन कैसे बच्चों को मिले इसका प्रावधान करें। Thank you to both of you for such a fantastic talk. My question to both of you, and especially Anand ji, आपसे यह है कि how do you see the future of education changing as we know it today? जो आपने एक बात करी कि हमें बहुत सारे आनंद जी चाहिए,
बट आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी यूज करके आज मैं टिम्बकटू में बैठ के हार्वर्ड का लेक्चर अटेंड कर सकता हूं, और फ्रैंकली मैं दिन में शायद एक आध जरूर करता हूं. तो विद दैट कॉन्टेक्स्ट हाउ डू यू थिंक कि अगले 10 साल 20 साल में एजुकेशन कैसे चेंज होगी? एंड आई एम स्पीकिंग एज अ फादर ऑफ अ 2-year-old myself. I have a 2-year-old daughter, and I'm shocked. I'm very confused. Should I go for a standard CBSE? Should I go for an international board? Should I go for an alternative form of schooling? Or should I just homeschool her? Do we really need to send children to a traditional school, whereas all the lectures that we know of today are just available? Khan Academy is a mind-blowing example. I'd love to hear, especially Anand ji, aapse, because you've done that teaching for so many years. तो आपको कैसे लगता है कि टीचिंग कैसे चेंज होगी और टेक्नोलॉजीज हम प्रॉब्लम्स भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? थैंक यू. अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जो निर्धन परिवार से आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में पूरे जितने भी लेक्चर है उसको मैंने ढाला है. उसमें 2 कैरेक्टर बना है, एक भोलू का, एक रिक्की का. रिक्की को हमने दिखाया सूटेड बूटेड इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, हाय हेलो करता है, पिज्जा हॉट डॉग बर्गर खाता है. भोलू को दिखाया कुर्ता पैजामा पहनता है, बेचारा दाल भात सब्जी भुट्टा खाता है. लेकिन जब एक कोई प्रॉब्लम आता है आईआईटी का, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आता है और मैं दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सबसे पहले उसको रिक्की बना देता है जो प्रिविलेज क्लास का बच्चा है, और भोलू का मजाक उड़ाता है कि अरे यार तुम तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, तुम कहां से ये बना पाओगे. तब उसको भोलू कहता है कि अरे यार तुम क्या समझते हो कि अच्छे स्कूल और अच्छे पैसे ही से पढ़ाई होती है, इच्छा शक्ति से कैसे पढ़ाई होती है दिखाता हूं. जिस सवाल को तूने ज्योमेट्री से सॉल्व किया उसको मैं ट्रिगोमेट्री से, उसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसे मैं अलजेब्रा से, उसे मैं कई तरीकों से 5-6 तरीका से बनाता है, उसको जनरलाइज करता है, उससे मिलता जुलता सवाल क्रिएट करता है और तब पूछता है बताओ हीरो तू या मैं. इस पूरे पढ़ाई को कुछ इसमें मोशन लाकर, कुछ इसमें क्रिएशन और कर 10 साल की आप बात बोल रहे, मैक्सिमम 2 साल में मैं इसे ऑनलाइन करने जा रहा हूं और हर लेक्चर हर बच्चा उसको अटेंड कर सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है. प्रत्येक लेक्चर का दाम हमने रखा है मात्र ₹1. थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ पॉइंट है मेरा. ओके, अगर आप पहली चीज क्या सीखते हैं? पहली चीज बच्चा क्या सीखता है? चलना, बोलना. इसको आप ऑनलाइन सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और ये बायोलॉजिकल फैक्ट है. हमारी 80% लर्निंग मोटर लर्निंग होती है. हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और तब हम सीखते हैं. सिर्फ 20% लर्निंग किताबों से हो सकती है, ऑनलाइन सोर्सेज से हो सकती है, पढ़ के हो सकती है, फॉर्मूला देख के हो सकती है. लेकिन ह्यूमन माइंड को सीखने के लिए एक दूसरा ह्यूमन चाहिए होता है. सो आप 100% ऑनलाइन तो करोगे तो आई डोंट सी एजुकेशन डूइंग वेरी वेल. ये एजुकेशन का फ्यूचर मैं नहीं देखता. बट हाँ, ऑनलाइन के जरिए टीचर्स का एम्पावरमेंट इज समथिंग विच आई डेफिनेटली शुड हैपन. जो मैं बात कर रहा था कि यू शुड हैव ऑनलाइन कोर्सेज और रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर्स, वो डेफिनेटली होना चाहिए. लेकिन एक व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है. आप याद रखिए, आपने जो बेस्ट चीजें दुनिया में सीखी वो किसी ने सिखाई है आपको. किसी को आप श्रेय देते हैं, ये मेरा गुरु था. आप नहीं बोलते कंप्यूटर 486 मेरा गुरु था, यू नो, ये वाला कंप्यूटर मेरा गुरु था, वो स्काइप मेरा गुरु था. नहीं होता, क्योंकि हम सीखते दूसरे इंसानों से हैं और ये हमारे डीएनए में है. तो आप टीचर्स का एम्पावरमेंट करिए टेक्नोलॉजी के साथ, बट टीचर्स को डू अवे नहीं कर सकते. टीचर्स को आप डू अवे नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन बांटना अगर काम होता तो मैं तो गूगल से सीख लेता, आप भी गूगल से सीख लेते, मैं भी गूगल से सीख लेता. बट नहीं होता, क्योंकि शिक्षा ना सिर्फ इंफॉर्मेशन है, शिक्षा एक आदर्श भी है. शिक्षा इज अबाउट एथिक्स, शिक्षा इज अबाउट वैल्यूज, और वैल्यूज कंप्यूटर नहीं सिखाता, वैल्यूज इंसान सिखाता है. हेलो, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, अभी आपने पहले बोला कि बच्चों को उत्साहित करते हैं, तो 2 टिप्स दे दीजिए आप दोनों प्लीज, कैसे उत्साहित कर सकते हैं एग्जैक्टली, विच वी कैन इम्प्लीमेंट ऑन आवर चिल्ड्रंस. हम तो जो अपने अनुभव से बताए 2 चीजों को हम बताना चाहेंगे. पहले कि बच्चे को जो आप बनाना चाहते हैं
उस तरह के लोगों का, बहुत छोटा बच्चा से बायोग्राफी पढ़ने के लिए जिसे उनकी बातें करिए। आप अपने आप को एक आदर्श पिता माता के तौर पर रखिए। बच्चा आता है, आप व्हाट्सएप खेलते हैं, फेसबुक देखते हैं, बच्चा को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताइए। तो पहले अपने आप को बहुत सारा त्याग करना पड़ता है बच्चे के लिए, और उन्हें उन चीजों की कहानियां सुनाइए, घर में वैसा माहौल चर्चा करिए, तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और उसमें हमेशा ये कॉन्फिडेंस जगाइए, उस बच्चे में ये बात घर करवाइए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। छोटा छोटा वो काम करे, उसको उत्साहित करिए, उसको ऐसा फील करवाइए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझ में सच में अनंत शक्तियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज ऐसा करके देखिए, हो सके 10 साल बाद आप मुझे जरूर याद करिएगा। ये सवाल कई बार डॉक्टर कलाम के साथ हमने डिस्कस किया, खास तौर से प्योर साइंसेस के बारे में। कई लोग इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कोई नहीं बनना चाहता। सो ये सवाल कई बार डॉक्टर कलाम और मेरे डिस्कशन में 2014 के करीब हमने कई बार डिस्कस किया इसको, और इस सवाल का आंसर उस किताब में था, वो रीइग्नाइटेड रखिए ना। रीइग्नाइटेड किताब हमने इसलिए लिखी थी कि क्या हम बच्चों को, छोटे बच्चों को खास तौर से, बड़े बच्चों को भी, ठीक है, थोड़े 30 साल के बच्चों को भी कभी कभी, क्या हम उनको प्रेरित कर सकते हैं एक बड़ी ड्रीम के साथ। बच्चों को अगर आप बताएंगे कि आप, अच्छा ये तुम ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे, या ये बॉटनी का ये लेसन सीख जाओगे, इट डज नॉट एक्साइट। बट अगर आप उसको ये दिखाइए कि आप स्पेसशिप चला सकते हो, आप शायद मार्स पे जा सकते हो, और मे बी वन ऑफ दीज गर्ल्स कुड बी द फर्स्ट वुमन ऑन मून, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, दैट इज व्हाट ट्रिगर्स। चिल्ड्रन आर वेरी इमेजिनेटिव। आपकी और हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बच्चों की इमेजिनेशन होती है। उस इमेजिनेशन को एंकर यूज करके उसके अराउंड आपको एक पाथ दिखाना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा चांद पे चलना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इतने घंटे, अब सो, अब उठो, एंड इट्स अ रियली बिग ड्राइवर। डॉक्टर कलाम यूज्ड टू से स्मॉल एम इज अ क्राइम, एंड डॉक्टर कलाम ऑल्सो यूज्ड टू से दैट ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डू नॉट लेट यू स्लीप। You have to give children that dream which does not let them sleep, which, you know, as he was saying कि वो एक कारवा बनाना है आपको एक ड्रीम का, और उसी के पीछे सब कुछ चलता रहेगा, तो वो ऑटो ट्रिगर दीजिए। दूसरा, क्रिटिसिज्म का मौका दीजिए। कभी कभी अनाप शनाप सवाल भी पूछ सकते हैं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे, लॉजिकली इनकोहेरेंट होंगे, लेकिन क्या आपने उनको क्रिटिसिज्म का मौका दिया? तो क्रिटिसिज्म का जो अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से मॉडर्न सोसाइटी में, कभी कभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास मोबाइल फोन है, और ये गूगल पे आपको डेटा पे गलत सिद्ध कर सकते हैं, मेरे को गलत सिद्ध कर सकते हैं अभी के अभी। नाउ यू हैव टू लर्न कि टीचर और स्टूडेंट इज अ फ्लैट लर्निंग प्रोसेस। जैसे डॉक्टर कलाम बोलते थे कि इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ टीचर, जस्ट लाइक इट इज अ प्रिविलेज टू बी अ स्टूडेंट। इट्स अ फ्लैट वर्ल्ड नाउ। सो वो थोड़ा सा वी हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिसिज्म। उनको इंकरेज करिए कि आपकी किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज करें, देन दे विल डेवलप अ थिंकिंग वेयर आई कैन चूज व्हाट आई थिंक इज राइट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस। वो चीज अगर आप देंगे तो आई थिंक ड्रीम एंड द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसिज्म, यू नो, क्रिटिसाइज यू एज वेल, यू नो, समटाइम्स। और जैसे ये बोल रहे थे डॉक्टर कलाम, एक चीज कहते थे, कट डाउन ऑन योर टीवी टाइम एंड इंक्रीज योर डिनर टाइम। सो क्या आप बच्चे के साथ डिनर करते हैं रोज? और आप डिनर पे क्या डिस्कशन करते हैं? क्या आप उस पर रिसर्च करते हैं? जो आप डिस्कशन करते हैं, इज इट सम न्यू लेसन विच यू गिव? डॉक्टर कलाम एज अ टीचर, यू नो, वी हैड अ लॉट ऑफ लंचेस एंड अ लॉट ऑफ डिनर्स टुगेदर। मैं तो अकेला रहता था यहाँ पे, तो वो कहते थे मेरे साथ ही लंच कर लो, मेरे साथ ही डिनर कर लो। हर एक लंच और हर एक डिनर पे डॉक्टर कलाम टॉट मी समथिंग एंड ही केम प्रिपेयर्ड बिकॉज आई वॉज ए स्टूडेंट। सो ही विल कम प्रिपेयर्ड, एंड राजू वहां बैठा हुआ है। हर बार पूरी डिनर पे, पूरे लंच पे हम लोग बात करते थे, कुछ नया सिखाते थे, और ना सिर्फ सिखाते थे, कहते थे अब तुम मुझे सिखाओ। तो वो भी अपॉर्चुनिटी दीजिए उनसे भी सीखने की, क्योंकि फिर वो सीख के आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ना सिर्फ आप मुझे बताओ, मैं भी आपको बताता हूँ। सो ये फ्लैटनिंग करिए, क्रिटिसिज्म को ओपन करिए और ड्रीम्स दीजिए। ठीक है, थैंक यू। सर, मैं सुभाषनी बोल रही हूँ, आलियांस फ्रांसेस की स्टूडेंट हूँ। मैं सुभाषनी बोल रही हूँ, आलियांस फ्रांसेस की स्टूडेंट हूँ, फ्रेंच सीखती हूँ।
और मैंने काफ़ी सुना है पर कभी समझा नहीं है कि टीचिंग हाउ इज़ इट अ टू वे लर्निंग प्रोसेस. टीचर्स क्या सीख सकते हैं स्टूडेंट्स से, और जितना स्टूडेंट्स टीचर से सीखते हैं क्या टीचर्स भी स्टूडेंट्स से उतना ही सीख सकते हैं? That's a very good question. ये जब आप टीचर बन जाइएगा तो बहुत अच्छे तरह से अनुभव कर सकती हैं. दरअसल में मैंने अभी बताया, सबसे अच्छा टीचर तो स्टूडेंट ही होता है अच्छे टीचर के लिए. अभी हमने जो बताया कि मैं कोई एक सवाल को पोस्ट करता हूं, देता हूं बच्चों के सामने, तो 3 बच्चे बनाते हैं. तो ज्यादातर बच्चे उसी तरीके से बनाते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से बनाने के बावजूद भी जो मैं पहले से जानता हूं. लेकिन कभी कभी एक कोई बच्चा एकदम नया तरीका से बनाता है जिसे मैंने सोचा भी नहीं था, तो मैं अपने उस नॉलेज बैंक में उसको डाल देता हूं. अगले साल उसका 4 सॉल्यूशन होता है, फिर 2-3 सालों तक मैं उसको बनाता हूं, पढ़ाता हूं, फिर 5 हो जाता है. ऐसे ही धीरे धीरे पूंजी बनते जाती है. और इसको मैं जब किताब के फॉर्म में लिखूंगा, बुक के फॉर्म में लिखूंगा, तो लोग हमारी तारीफ करेंगे कि वाह क्या मैथमेटिशियन है, एक ही सवाल को 10-10 तरीके से बनाया. लेकिन उसके पीछे की सच्चाई, भेद तो यह है कि वो बच्चों का ही कंट्रीब्यूशन है. तो बहुत कुछ सीख सकते हैं. We are running short on time, so I'll take 2 more questions. Should I send it back because Okay, this to this girl here in blue, and सर मेरा सवाल ये है कि आजकल हर चीज़ के लिए अगर मुझे आईएएस क्रैक करना है तो मुझे कोचिंग सेंटर चाहिए, अगर मुझे आईआईएम क्रैक करना है तो मुझे कोचिंग सेंटर चाहिए. तो क्या एक्चुअली कोचिंग सेंटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे स्कूल के टीचर से या प्रोफेसर से, कॉलेज के? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर से ज़्यादा कोचिंग टीचर, मतलब कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाते हैं उन टीचर्स को ज़्यादा वो दिया जाता है, तो वो रैपो नहीं बन पाता है कहीं स्टूडेंट और टीचर का. तो मैं इसी बारे में पूछना चाहूंगी अगर आप कुछ बोल. कोचिंग का इतिहास बहुत पुराना है. द्रोणाचार्य ही पढ़ाते थे पांडव को अलग से, वो कोचिंग ही था. उसी जमाने से चलते आया है कि प्रिविलेज क्लास के लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है. अब क्या है कि सामान्य शिक्षा जो है हमारे स्कूलों में है, कॉलेजों में है, उसमें पढ़कर बच्चा अच्छा कर सकता है. लेकिन जो आज हमारे सरकार के सामने एक चुनौती है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए, उनका लेवल और जो सामान्य शिक्षा है, दोनों के बीच में काफी खाई है. इसको भरने के लिए कोचिंग सेंटर का जन्म होता है और मजबूरी होती है. अमीर बच्चे तो पैसे देके चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो निर्धन क्लास से आते हैं, अंडर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते. तो इसमें बहुत व्यापक सुधार की जरूरत है. ये सवाल का जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता है. एक तो दोनों के खाई को कम करने की जरूरत है और एक क्वालिटी एजुकेशन हर स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए हमको, आपको, सबको मिल के प्रयास करने की. I'll take the last question. I just wanted to answer that question. I did not take a coaching for engineering. I did not take a coaching for CAT. ठीक है. And I'm sitting here, right? So I think कई चीजें तो ऐसी जो मुझे लगी कि मैं खुद ही पढ़ लूंगा. ठीक है, जो खाई की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रयास करिए तो आप खुद उस खाई को पाट सकते हैं. और द एग्जिस्टेंस ऑफ कोचिंग इज ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ द फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. क्यों ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं जो हमें 12वीं में पढ़ाए नहीं जाते, और वो 12वीं के बाद वो 13वीं, 14वीं, 15वीं के सवाल हमसे पूछने लगते हैं. तो या तो वो 15वीं के सवाल 12वीं तक ले आए या 12वीं को 15वीं तक ले जाएं. लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कोचिंग इज अ फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, दैट्स माय पॉइंट. There's a gentleman. Okay, we'll take her and the elderly gentleman at the back too. Just you and the last one from you, sir. Good evening, sir. I am a college student who's recently faced the wrath of boards. So my question is based on that. What I gathered from this discussion is that everything should be merit based. That is what is right is. Even whether it is teachers or students. So the boards, which are such an important, essential, it's a landmark and it's a benchmark of
you know, how your career starts. This is actually from where your career of an individual starts. Doesn't it encourage ratification more than merit? You know, because I am quite disappointed with boards, and that is the reason I haven't got the course of my choice. So then, you know, this is such an important stepping stone of our life. So I am, is this how our education system rates the students? And it's just a question on the education system. I agree with you. Both are horrible. Okay. प्रॉब्लम ये है, आई थिंक ये सिस्टम डिजाइंड है 30 साल पहले के लिए, जब नॉलेज की पेस बहुत कम थी. अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर 13 महीने में आधी चीजें जो आप पढ़ते हो वो बेकार हो जाती हैं. ऐसे सिचुएशन में क्या ये सवाल जवाब वाला जो ट्रेंड है ना, क्वेश्चन एंड आंसर, इज दिस द राइट ट्रेंड? वी डू नॉट नीड पीपल हु गिव आंसर्स. I want people who give solutions. The world is not full of questions anymore. The world is full of problems. Problems multi-dimensional होती हैं. Problems में कई angles होते हैं. और 12वीं क्लास या 10वीं क्लास जो भी आपने, तो 12वीं पास करी आपने, वेरी गुड. तो नहीं, आधी जनता नहीं कर पाती. लेकिन 12वीं क्लास में भी when you are getting into college, I think एक तो हमें ओपन बुक कर देना चाहिए जहां तक हम कर सकें. I've seen the closed book system, I've seen the open book courses, and believe me, open book courses are much better because आपको रटने पे नहीं फोकस करना होता. आपके पास फॉर्मूला सामने है, क्योंकि आज के जमाने में सबके हाथ में गूगल है, सबके पास 3G है, 4G भी आ जाएगा, सारा डेटा तो अवेलेबल है. प्रॉब्लम यह है कि इस डेटा और इस नॉलेज का करें क्या. फॉर्मूला तो सबको पता है, राइट? फॉर्मूला तो सबको पता है. जैसे IIT की प्रॉब्लम होती थी पहले, वो मेन वाला फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व कैसे करें, हम सोल्यूशन कैसे निकालें. एप्टीट्यूड इज इन, सो द वर्ल्ड नीड्स सोल्यूशन मेकर्स, राइट? और यहीं पे शायद हमारे युवा जो है ना, गच्चा खा जाते हैं. अगर आप मुझसे पूछिए, अभी आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इंडियन यूथ किस चीज में कम रह गए, इसी चीज में कम रह गए. हम आंसर ढूंढते रहे और लोगों ने सोल्यूशन निकालने शुरू कर दिए. सो वी आर वेरी गुड, वी आर गुड एट फाइंडिंग आंसर्स, नॉट गुड सोल्यूशंस. ओके, excuse me, I am of the perception that if we have good teachers, we can have a good nation. It is an analogy what Napoleon has said, give me good mothers, I will give you good nation. I feel give us good, let us have good teachers, we will have good nations. Teachers, I feel, should have passion, should have dedication, should have obsession in their profession. It is not a profession, it is an obsession. How can we have better teachers so that we can have better nation? What is your opinion? अच्छा सवाल पूछा है, और आखिरी सवाल है. सवाल कभी कभी कुछ बाकी भी रह जाना चाहिए, ताकि फिर अगली बार भी आप लोग प्रोग्राम में मुझे कहीं सुनने आ जाएं. तो ये हम बताना चाह रहे थे कि हमारे देश में सच में अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, और इस जरूरत की कमी के लिए हम लोग कैसे क्या करें. अभी बहुत मुद्दों पर हम लोग ने बात की. सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए. ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा. मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर यहां बैठा हुआ व्यक्ति अगर आता है सुनने हम लोगों को, और ये सोचता है वो व्यक्ति कि यहां के जाने के बाद हम बगल के गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वहां देखेंगे वहां हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शिक्षकों को मोटिवेट कर सकते हैं, शाम को अपने खाली वक्त में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप सोचना प्रारंभ करेंगे तो सच में इस प्रोग्राम का, इस मीटिंग की, इस डिबेट की सार्थकता होगी. मैं यही उम्मीद करता हूं. तो अभी तो हमने कई चीजें सर भी डिस्कस्ड इसी बारे में, ट्रेनिंग से लेकर के शिक्षकों के रिक्रूटमेंट, उनकी कैटेगराइजेशन, सरकारी वर्सेस प्राइवेट, टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल आया. लेकिन एक चीज है, हम में से कितने होते हैं, आपने 12वीं पास करी, आप कॉलेज गई, क्या आपने जाके अपने प्राइमरी स्कूल को, इस प्राइमरी स्कूल में जो टीचर थे उनको बोला थैंक यू मैम, थैंक यू सर? नहीं बोला. हम में से कितने लोग होते हैं, मैंने खुद नहीं किया, सो आई एम गिल्टी एज मच एज यू आर. बट जब हमें सफलता मिलती है तो उन सारी कड़ियों को हम भूल जाते हैं जिनके ऊपर हम चढ़ते चढ़ते उस सफलता तक पहुंचे थे.
अगर कुछ बदलना है यहाँ बैठ के तो सरकार से मत एक्सपेक्ट करिए. डोंट एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू चेंज. अभी डोंट एक्सपेक्ट द स्कूल्स टू चेंज, द टीचर्स टू चेंज. चेंज योरसेल्फ. वापस जाइए घर. और जितने ऐसे टीचर हैं, आपको बहुत सारी सफलता है, आप सब लोग सफल हैं. अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफलता तो आपने पाई है जिंदगी में, कई पाई होंगी. जाकर के उन सारे टीचरों को आप धन्यवाद दीजिए जो आपकी इस सफलता में योगदान जिन्होंने दिया. वहां से शुरू करिए, सोच से बदलाव शुरू करिए. डॉक्टर कलाम ने मई 2015 में सोनी दिस बुक केम ना, रीइग्नाइटेड की पहली कॉपी, क्योंकि साइंस के ऊपर बुक थी, साइंस के ऊपर बुक है रीइग्नाइटेड, रखिए. पहली कॉपी वो देने गए अपने साइंस के टीचर को, रेवरेंड फादर चिन्नादुरई, आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग विद द नेम, बट अपने जो अलाइव, बहुत कम ही उनके टीचर अलाइव थे, लेकिन ये किताब वो उन टीचर को देने गए. उन्होंने कहा सर आपने मेरे को पढ़ाया था, आज मैंने साइंस के ऊपर एक किताब लिखी है, ये मैं आपको देने आया हूं. और मैं उस विजिट में नहीं गया था, वापस आए और मुझसे बोलते हैं माई टीचर अप्रिशिएटेड आवर बुक, दिस इज माई बिगेस्ट सर्टिफिकेट. यू सी टीचर. थैंक यू. ओके आनंद एक लाइन और कहेंगे एंड देन आई वुड लाइक टू. ये बताया कि भाई शिक्षकों को जाके धन्यवाद देना चाहिए. इस पर एक बात याद है, जब भी IIT का रिजल्ट आता है, UPSC का रिजल्ट आता है या कैट का रिजल्ट आता है तो पढ़ने और देखने को मिलता है. इंटरव्यू, मान लीजिए सृजन पाल जी अच्छा करके, इनके पास माइक इंटरव्यू वाला बुलाया, बताइए सृजन जी आपको सफलता कैसे मिली? कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और सच्चा निशाना, यही सफलता का कारण था. आप किसको श्रेय देने जाते हैं? हमारे मम्मी पापा जो बहुत मेहनत किए, बच्चे से पढ़ाए. टीचर कहां गए पता नहीं. सृजन पाल जी फेल कर जाते हैं, 10th फेल कर गए. अब इनसे पूछा गया कि बताइए आप असफल क्यों हुए? अरे मास्टर एक खराब मिल गया मुझे, पढ़ाया ही नहीं मन से, उसको कुछ ही नहीं आता था. अब नहीं कुछ मिला तो बोल देते हैं किस्मत न थी हमारी. Thank you, Anand. I'd like to call Radhika for the vote of thanks, please. I think there's really nothing left to say except thank you so much, Pooja, Anandji, Srijan, for a fabulous evening. I think we're all going to take back a lot. And I just like to tell you that this is going to keep going on. Tomorrow we have Nawazuddin Siddiqui at 5 p.m. followed by Shilpa Shetty and Payal Gidwani Tiwari at 7. So just keep on coming till Sunday and we'll see you all again. Thank you so much.